Good morning, class 7. Today we are going to study the other mode of nutrition in plant. Most of the plant have green pigment that is known as chlorophyll, which can make their own food. They are called autotrophic. First of all, in the first page, we have studied about what are autotrophs, what are heterotrophs. The plant which prepare their own food are called autotrophs, and the other which cannot prepare their own food, they depend on the other for their food, are called heterotrophs. Understood? Some plants, however, do not contain chlorophyll and hence cannot synthesize their own food. They are called heterotrophic plants and depend for food on other organisms. Depending on their mode of obtaining food, all heterotrophs plant can divide into two main groups. इनको दो main group में बांटा गया, that are parasite and saprophyte. Thus, just like animals, some plants have ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी विल डिस्कस. जैसे एनिमल्स में होता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. सेम वे उस कुछ प्लांट्स में भी ऐसा होता है. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट आर पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट. नाउ वी विल स्टडी दीज टू वन बाय वन. Parasite, a plant which live on the on or inside other organism called host are and derive the food फ्रॉम इट इज कॉल्ड पैरासाइट. जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं या इनसाइड रह के या उनके ऊपर ग्रो करके, दैट आर नोन एज पैरासाइट. दोज नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी ऑफ अदर प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट. पैरासाइट क्या होते हैं? वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, दैट आर नोन एज पैरासाइट. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट, और जिसके ऊपर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं of the parasite. The parasite plant climb on the host plant from which they get all the food. The parasite plant produce certain special type of root. उनके रूट कुछ स्पेशल टाइप होते हैं that are called sucking root. क्या कहलाते हैं? sucking means चूसना. वो रूट के हेल्प से उनके फूड क्या करते हैं, जिस प्लांट पे वो ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, उनका फूड मटेरियल सक करते हैं फॉर their own growth, which penetrate into the host plant में penetrate करते हैं, and the parasite suck the food material from the host through which their special root, वो अपने स्पेशल रूट से क्या करते हैं, होस्ट प्लांट का फूड क्या करते हैं, सक करते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ. एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट इज कैस्कटा. कैस्कटा इज ऑल्सो नोन एज अमरबेल इन हिंदी. कैस्कटा एक पैरासाइट प्लांट है जिसे हम अमरबेल कहते हैं हिंदी में. कैस्कटा प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे इज नॉट ग्रीन इन कलर. वो क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो ग्रीन इन कलर में नहीं होते. वी कैन सी कैस्कटा प्लांट एज येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. येलो होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्विंग्स अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो क्या होते हैं? किसी भी होस्ट प्लांट के अराउंड घूमे हुए होते हैं ट्रीज के. द ट्री ऑन विच कैस्कटा प्लांट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. होस्ट कैस्कटा इज नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग येलो कलर. वो किस कलर के होते हैं? येलो कलर, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द chlorophyll. Since Cascata plant does not have the green pigment called chlorophyll, it cannot synthesize their own food. Cascata plant or Amarbale plant can take ready-made food from the tree or on which they climb. Cascata plant या अमरबेल कहिए, वो क्या करते हैं, जिस भी ट्री पे क्लाइम करते हैं उसी से वो अपना फूड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. Since Cascata plant deprive the host tree of valuable nutrient called parasite, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं, क्योंकि वो होस्ट प्लांट पे डिपेंड है फॉर देयर वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. We find Cascata plant depend on other plant for obtaining food. Therefore, Cascata plant are heterotrophic. Show the mode of nutrition. Which mode of nutrition they show? Heterotrophic. Please note that the another name of Cascata is dodder also. What is the other name of Cascata is dodder. Amarbale, Cascata or dodder. In addition of Cascata, some other example of plant parasite are, कुछ other example है parasite plant के, that is mistletoe, wheat rust, corn smut. These are the other plant which are parasite. In the above discussion, at many places we have find the term plant parasite inside of just parasite. Instead of just parasite हमने क्या word पाया है? plant parasite word पाया. This is because many animal also live एज पैरासाइट. कुछ एनिमल ऑल्सो कुछ एनिमल क्या होते हैं, वो भी पैरासाइट होते हैं, इसीलिए सिर्फ वर्ड यूज किया गया है, दैट इज प्लांट parasite. Understood? This is because many animal also live as parasite. For example, animal which like
लाइस, बेड बग, लीकेन्स एंड मॉस्किटो, दीज आर ऑल्सो पैरासाइट। इन सबको भी पैरासाइट कहते हैं बिकॉज दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। बेड बग्स खटमल को कहते हैं। लाइस, जैसे लाइस मीन्स जूं, जो आपके सर में देखिए आपने देखा होगा क्या होती हैं, वो ब्लड सक करती हैं और दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम आवर ब्लड। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सेप्रोफाइट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट हेडिंग? सेप्रोफाइट। दोज नॉन ग्रीन प्लांट, ये भी नॉन ग्रीन होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दोज नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट क्या थे? ये ग्रीन प्लांट से ग्रीन होस्ट प्लांट से अपना फूड एब्जॉर्ब करते थे। बट सेप्रोफाइट में क्या है? वो नॉन ग्रीन प्लांट है विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड सेप्रोफाइट। नॉन ग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं जो सड़े हुए डेड या ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज मैटर पे ग्रो करते हैं और उनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। जो प्लांट्स एनिमल्स के डेड होने पे जो रिमेन्स रह जाता है उन पे ग्रो करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक फंगस और फंजाई derive food from the dead decaying organic matter, so fungi are saprophyte। saprophyte और parasite में मेन डिफरेंस क्या है? पैरासाइट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट पे ग्रो करते हैं फॉर द फूड एब्जॉर्ब, और सेप्रोफाइट क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं फॉर देयर फूड। सम ऑफ द कॉमन आर पैरासाइट आर फंगी। सम ऑफ द कॉमन parasite fungi are mushroom, bread mold, yeast. So we can also say that fungi such as mushroom, bread mold and yeast are the saprophyte। इसलिए हम इन सबको क्या कह सकते हैं? saprophyte। In other word, fungi such as mushroom, bread mold and yeast have saprophyte mode of nutrition। certain bacteria are also saprophyte। इन सबको छोड़ के मशरूम, ब्रेड माउल्ड और यीस्ट को छोड़ के कुछ और भी saprophyte हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं। many time we have seen fluffy umbrella like plant growing on the rotting wood। कभी कभी आप लोग रेनी सीजन में देखोगे कई वुड पे अम्ब्रेला शेप का एक ट्री होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, अम्ब्रेला शेप में होते हैं रॉटिंग वुड पे जो सड़ रहे हो। रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दीज आर कॉल्ड फंगस कॉल्ड मशरूम। उन्हें हम मशरूम कहते हैं। हिंदी में कभी कभी आप लोग कॉमन वर्ड में कहते हो कि छाते वाला पेड़ निकला है, छाते वाला पेड़ निकला है। अंडरस्टूड। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटिंग वुड एंड डेड ट्रीज। वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? रॉटिंग वुड से जो सड़ रहे हों या डेड ट्री से। सो दे आर सेप्रोफाइट। The saprophytic plant do not have chlorophyll। saprophytic plants में भी chlorophyll नहीं होता है and hence they cannot make their own food। इसीलिए वो अपना food क्या खुद से नहीं बना पाते। So they do not have chlorophyll and cannot make their own food by the process of photosynthesis। The non-green saprophytic plant obtain their food as follow। ये कैसे करते हैं? The saprophytic plant like fungus secrete digestive juice। एक digestive juice secrete करते हैं on the dead animal and decaying organic matter and convert it into solution। क्या करते हैं? एक juice secrete करते हैं वो dead animals या dead matter organic matter पे, और वो क्या करता है? वो juice क्या करता है? उस डेड ऑर्गेनिज्म में जो है एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या करता है? उस बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट टेक its nutrient from dead and decaying organic matter is called saprophytic mode of nutrition। इसी को क्या कहते हैं? saprophytic mode of nutrition। the plant use saprophytic mode of nutrition are called saprophyte। और जो plant saprophytic mode of nutrition use करके अपना food पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? saprophyte। again I'll tell you the difference between parasite and saprophyte। parasite में क्या होता है? वो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफाइट में क्या होता है? नॉन ग्रीन होते हैं ये भी। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे क्लोरोफिल इज एब्सेंस इन बोथ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म, बट they suck or they can absorb their food from the dead and decaying organic matter। Understood? Fungi also grown on pickle, leather, wood, leather object, clothes and other articles which are left unclean in hot and humid weather for considerable time। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक पिकल्स मीन्स अचार, लेदर ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स है, अगर बहुत दिन तक अनक्लीन छोड़ दिया जाए हॉट और ह्यूमिड वेदर में, मॉइस्चर टाइम में, तो क्या होता है? वाइट उस पर ग्रो करता है
जिससे हम कहते हैं फंगस. अंडरस्टूड. द ग्रोथ ऑफ फंगस में स्पॉइल मैनी थिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मेनली कब होते हैं ग्रोथ, ये कब होते हैं? रेनी सीजन, जब टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी. देन it is due to the growth of fungus that our leather shoe kept in our house sometimes get spoiled during the rainy season. Fungus can be useful as well as harmful. अब fungus भी दो तरह के होते हैं. First is useful and other is harmful. For example, fungi such as mushroom and yeast are useful. Mushroom can be eaten as vegetable, whereas yeast is used to produce alcohol. दो तरह के फंगी जो हैं, मशरूम और ईस्ट. मशरूम क्या होते हैं? एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं. मशरूम भी दो टाइप के होते हैं, एक यूज एज वेजिटेबल और एक रेनी सीजन में जो डेड ऑर्गेनिक्स पे निकले रहे हैं वो आप एज अ वेजिटेबल यूज़ नहीं कर सकते. सो जो यूजेबल एज अ वेजिटेबल होते हैं उनकी क्या होती है? फार्मिंग होती है फील्ड में. एंड यीस्ट किस लिए होता है? एल्कोहल बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस एल्कोहल. सम फंगस इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. कुछ फंगस यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन. फंगस इज यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन. फंगस इज ऑल्सो, पेंसिलिन एक दवा होती है, किसी भी डिजीज़ का एंटीबायोटिक बनाते हैं उसी बैक्टीरिया से, दैट इज़ नोन एज पेंसिलिन. पेंसिलिन फंगस के हेल्प से बनता है. फंगस इज ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट. कुछ प्लांट में डिजीज, अब ये तो ये यूजफुल इफेक्ट है. अब हार्मफुल देखिए. फंगस ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट एज वेल एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. सम ऑफ द होल क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड आर डिस्ट्रॉय बाय फंगस. मेन प्लांट्स को और ह्यूमंस को दोनों तरह से, दोनों को ये इफेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी आप देखोगे कि फील्ड में क्या होते हैं, पूरे क्रॉप्स ग्रो रखे हैं लेकिन उसमें फंगस लग जाते हैं और पूरा वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. द स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस इज कॉज बाय फंगस. एक रिंगवॉर्म डिजीज होता है ह्यूमंस में जो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है. इन एडिशन ऑफ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट, देयर आर ऑल्सो सम अदर प्लांट्स हुज मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर समवॉट peculiar. These are called insectivores. कुछ पैरासाइट और इन एडिशन ऑफ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि whose mode of nutrition are somewhat peculiar means different, अलग होता है. पेंसुलर मीन्स डिफरेंट. दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स. उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवर्स प्लांट कहते हैं. एंड सिम्बायोटिक प्लांट. दो तरह के होते हैं ये, इंसेक्टिवर्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट. लेट अस डिस्कस दीज पेंसुलर मीन्स डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इन डिटेल वन बाय वन. अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड symbiotic plant. This will discuss in the next class 7th. Have a good revision till to saprophyte, which is on page number 8. Have a good revision of page number 8. Good day. Bye bye.